अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। तेलंगाना स्टेट आरटीसी कार्गो मैनेजर बी पाल ने कहा है कि लोगों को आरटीसी की जानिब से फराहम की जाने वाली कार्गो खिदमात से फायदा उठाना चाहिए। तेलंगाना स्टेट आरटीसी कार्गो डिपार्टमेंट के ज़रिए एहतमाम आदिलाबाद शहर मुस्तकिल में तेलंगाना स्टेट आरटीसी कार्गो खिदमात के बारे में लोगों को आगाह करने के लिए एक रैली का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कार्गो मैनेजर बी पाल ने बताया कि कार्गो एंड पार्सल सर्विसेज के जरिए कम कीमत पर तेजी से मंजिल तक पहुंचने के लिए इक़दाम किए जा रहे। उन्होंने मजीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। इस मौके पर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के सियाना, शेख अंसार, महेश्वर, किशोर देश पांडे, विजय रेड्डी के अल्लाह, कार्गो का अमला और दीगर मौजूद थे। అందరికీ నమస్తే। నేను కార్గో ఏటీఎం ఆదిలాబాద్ నిజామాబాద్ ఏమైనా ప్రయాణికులారా మరి కస్టమర్లారా, ఆర్టీసీ అనేది గొప్ప సంస్థ। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గత 5 సంవత్సరాలుగా కార్గో సేవలు చేస్తుంది ఆర్టీసీ। మరి వినియోగదారులు ఈ కార్గో సేవలను వినియోగించుకోవాలి। సులభంగా, క్షేమంగా, తక్కువ ధరతో, అతి చేరువలో 24 గంటలు ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది ఆర్టీసీ కార్గో। మరి వ్యాపారస్తులకు ఇది ఒక మంచి అవకాశం। ముఖ్యంగా పచ్చళ్ళు, గిఫ్ట్ ఐటమ్స్, ఎలక్ట్రానిక్ ఐటమ్స్, టూల్స్, స్వీట్స్, గార్మెంట్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్, మెడిసిన్ 50 గ్రాములు మొదలుకొని 100 కిలోల వరకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికైనా ఈ రాష్ట్రంలో మరి అంతర్రాష్ట్ర, ఉదాహరణకి కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ లాంటి రాష్ట్రాలకు కూడా అది చేరువగా 24 గంటల్లోనే పంపే విధంగా ఆర్టీసీ సంస్థ ఈ కార్గో సంస్థను నడుపుతుంది। కాబట్టి వ్యాపారస్తులందరూ ఈ యొక్క సదవకాశాన్ని వినియోగించుకొని మీ యొక్క వ్యాపార అభివృద్ధి చేసుకుంటారని, ఆర్టీసీ కార్గోను కూడా అభివృద్ధి పరచడానికి మీరు ప్రయత్నం చేస్తారని చెప్పి కోరుకుంటూ నమస్తే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్। आदिलाबाद शहर मुस्तकिल के वार्ड नंबर 33 शांति नगर के सिन्हा गणेश मंडल के लड्डू की नीलामी में रिकॉर्ड कीमत हासिल हुई। इस साल लड्डू को आरएसएस पार्टी टाउन सदर वार्ड नंबर 33 काउंसलर अजय लाल ने 1,01,000 रुपए में नीलामी के जरिए हासिल किया। लड्डू हासिल करने के लिए अकीदतमंदों ने नीलामी में हिस्सा लिया। मुंतजमीन ने बताया कि पिछले 18 सालों से स्नेहा गणेश मंडल के मुंतजमीन भगवान गणेश की ताजीम कर रहे हैं। वो लड्डू की नीलामी कर रहे हैं। इस मौके पर मंडपम के मुंतजमीन क्रांति कुमार, राजू, कल्याण, परमेश, आशीष ने अजय इलाल को शॉल से नवाजा। వింటానా అలా వాపమను
نئے راشن کارڈز کے لیے درخواستیں 2 اکتوبر سے قبول کی جائیں گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے راشن کارڈ جاری کرنے کے لیے اپنائے جانے والے طریقہ کار کے ضمن میں ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا تھا اور اس میں عہدیداروں کو کئی ہدایت بھی دی گئی۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹ وکرمارکا، وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی، R&B وزیر کے وینکٹ ریڈی، قانون ساز کونسل کے چیئرمین گتا سکھیندر ریڈی نے سری سائلم ریزروائر سے 40 کلومیٹر زیر زمین سرنگ امرآباد ریزرو فارسٹ کے نیچے بنائی جا رہی ہے اس کا دورہ کیا، جو سری سائلم سے 30 TMC پانی لائے گی۔ مشترکہ نلگنڈا ضلع میں ڈیڈ سٹوریج 4600 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے اس SLBC ٹنل کا کام مشترکہ طور پر ضلع نلگنڈا میں 3 لاکھ ایکڑ زمین کو سیراب کرے گا۔ وزیر آبپاشی اتم کمار ریڈی نے متعین ٹائم لائنز طے کیے اور آبپاشی CE اور ایگزیکٹو ایجنسی JP ایسوسی ایٹس کو ہدایت دی کہ وہ پروجیکٹ کو ستمبر 2027 تک مکمل کریں۔ GHMC ہیڈ آفس میں چہرے کی شناخت حاضری کے نظام کا نفاذ شروع کر دیا گیا ہے۔ اس کے حصے کے طور پر جمعے کے روز 14 محکموں میں کام کرنے والے افسران اور عملے یعنی کہ باقاعدہ آؤٹ سورس کے چہرے کیچ کیے گئے ہیں اور متعلقہ موبائل پر مبنی ایپ میں IT ڈپارٹمنٹ میں رجسٹر کر لیا ہے۔ یہ مصنوعی ذہانت پر کام کرتا ہے۔ 39 محکموں کے افسران اور عملے کو چہرے کی شناخت کے لیے حاضری کے نظام کے لیے تیار کیا جا رہا۔ اشتہار اور پبلسٹی، آڈٹ اکاؤنٹ سیکشن، CPRO سیکشن، الیکشن برانچ، اسٹیٹ آفس، فائنانس اکاؤنٹس سیکشن، جنرل ٹیکسیشن، لیبر ویلفیئر سیکشن، لینڈ ایکوزیشن، لیگل سیکشن اور میونسپل کورٹ سیکرٹری سیکشن، جنرل ایڈمنسٹریشن اور کمشنر آفس کے چہرے، ویٹرنری اور ویجیلنس سیکشن کے افسران اور عملے کے چہرے کیچ کیے گئے۔ ریاستی امور اور IT کے وزیر نارا لوکیش نے پورتلا پٹو حلقے کے اکانم بٹو ضلع پریشد ہائی سکول کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر وزیر لوکیش نے 8ویں، 9ویں، 10ویں جماعت کے طلباء کے کلاس رومز کا بھی معائنہ کیا اور وہاں موجود خامیوں کے بارے میں دریافت کیا، جیسا کہ کچھ طلباء نے کہا ہے کہ انہیں ابھی تک نصابی کتابیں نہیں ملی ہیں۔ وزیر نے حکام کو ہدایت دی کہ طلباء کو فوری طور پر نصابی کتب کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ وزیر نے جب پوچھا کہ نصاب کس زبان میں پڑھایا جا رہا تو طلباء نے کہا ہے کہ یہ تیلگو اور انگریزی دونوں میں پڑھایا جا رہا۔ طلباء کا کہنا تھا کہ اسکول میں بینچ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں فرش پر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے۔ وزیر نے کہا کہ جلد فرنیچر کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ جب ان سے بیت الخلاء کی صفائی کے بارے میں پوچھا گیا تو طلباء نے اطمینان کا اظہار کیا۔ پچھلے 3 مہینوں میں یہ پہلے سے بہتر ہے۔ جب P روی کمار نے کاماریڈی قصبے پہنچ کر کہا کہ وہ بیمار ہیں اور ان کا آپریشن ہونا ہے تو ان کے خاندان نے مالی مشکلات کی وجہ سے کانگریس قائدین سے رابطہ کیا اور فوری طور پر ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر کو معاملہ بتایا، جنہوں نے فوری طور پر ردعمل کا اظہار کیا اور نمز اسپتال کے ڈاکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے بات کی اور حکومت کی جانب سے روی کے علاج کے لیے 2 لاکھ روپے کی LOC جاری کی گئی۔ روی کے اہل خانہ نے ریاستی حکومت کے مشیر شبیر علی سے اظہار تشکر کیا۔ نئے فوجداری قوانین سے واقف ہونا ضروری ہے، پولیس کمشنر کا انکشاف۔ برگام برج پر واقع بھوم ٹیڈی کنونشن منی فنکشن ہال میں نظام آباد پولیس کمشنر کلمیشور سنگھ نور IPS کی سرپرستی میں نئے فوجداری قوانین پر میڈیا کے نمائندوں کے لیے بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر پولیس کمشنر نے کہا کہ حکومت ہند کے نئے کرمنل جسٹس قوانین 2023 1 جولائی 2023 سے لاگو ہو گئے ہیں تاکہ میڈیا کے دوستوں کو بہت سے مقدمات کی تفتیش اور ٹرائل میں اپنائے جانے والے نئے طریقہ کار سے آگاہ کیا جا سکے۔ انڈین سول پروٹیکشن کوڈ ایویڈنس اتھارٹی آف انڈیا کی جانب سے
اور فقہ کے ہر پہلو کی تفصیل سے متعلق مختلف قانونی متن میں وضاحت کی گئی ہے۔ اس آگاہی پروگرام کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے مکمل طور پر بیان کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا کے نمائندوں کی شکوک و شبہات کو دور کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈی سی پی ایڈمن کوٹیشور راؤ، ایڈیشنل ڈی سی پی اے آر شنکر نائک، نظام آباد اور دیگر موجود تھے۔ అనేది అందరికీ ఏం తెలుసు, ఆ నోటీస్ అనేది ఇవ్వాలి. ఆ నోటీస్లో నేను కండిషన్స్ని మెన్షన్ చేయాలి. అతనికి పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సహకరించడానికి హాజరైన అని చెప్పాలి, లేకపోతే అతని దగ్గర ఉన్నటువంటి ఏదైనా డాక్యుమెంట్స్ని ఎవిడెన్స్ని ఏదైనా నాకు ప్రొడ్యూస్ చేయమని చెప్పాలి. ఇట్లాంటిది ఏదైనా నేను కండిషన్స్ పెట్టి అతనికి ఒక కంప్లైన్స్ నాకు అది చేయమన్నట్టు నేను చెప్పిన. అతను చేయలేని సందర్భాల్లో మళ్ళీ నేను కోర్టుకి ఇతను మేము ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ని ఇతను పాటించట్లేదు, ఇన్వెస్టిగేషన్లో మాకు సహకరించట్లేదని నేను కోర్టు దృష్టికి తీసుకుపోయి కోర్టు నుంచి పర్మిషన్ తీసుకున్నాకనే నేను అరెస్ట్ చేయగలుగుతాను. చిన్న 324 చిన్న కొట్లాట ఏం చేసుకొని వస్తారు, దెబ్బ తగిలి ఉంటుంది, రక్తగాయం ఉంటుంది అది, బట్ అది సింపుల్ ఇంజురీ ఉంటుంది. చూడ్డానికి రక్తము అన్నీ తాగినప్పుడు పెద్దగా షర్ట్ మీద తాగుతుంది, అన్నీ చూడడానికి ఘోరంగా కనిపిస్తుంది అది, బట్ గాయం అనేది చిన్న గాయమే కదా, సింపుల్ ఇంజురీ ఉంటుంది. చూసే వాళ్ళందరూ ఫోటో చూసి వాళ్ళు అరే బాగా కొట్టినారు, బాగా రక్తకారం ఉంది అని అంటారు. డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే సింపుల్ ఇంజురీ ఉంటుంది, దాంట్లో అరెస్ట్ చేసే అధికారం మనకు ఉంటుంది. బట్ జనరల్ సిటిజన్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఏముంటుంది, అరే అరెస్ట్ చేయాలి, అంత కొట్టినారు, అంత రక్తకారింది, అరెస్ట్ చేయాలి, జైలు పంపాలనేది ఉంటుంది. బట్ చట్టంలో మనకి అది ప్రొవిజన్ వేరు. సో అట్లాంటి దాంట్లో కూడా మళ్ళీ కోర్టుకి మేము ఎందుకు అతన్ని మేము ఇచ్చినటువంటి నోటీస్ని అతను పాటించట్లేదు, ఎట్లా పాటించట్లేదు, ఎందుకు పాటించట్లేదు, అతను పాటించలేని దానికి అతని ఉద్దేశం ఏంటి, ఏం చేస్తాడు మళ్ళీ అతను అనేది ఇవన్నీ నేను కోర్టు కన్విన్స్ చేసినాక కోర్టు నాకు అప్పుడు వారెంట్ ఇస్తుంది, నేను అప్పుడు అతన్ని అరెస్ట్ చేయగలుగుతాను. ఇప్పుడు కొత్త చట్ట ప్రకారంగా మళ్ళీ 3 years కింద తక్కువ పనిష్మెంట్లో ఫస్ట్ అతన్ని 3 years కింద తక్కువ పనిష్మెంట్లో డిఎస్పీ పర్మిషన్ కూడా ఉండాలి. అది కూడా ఒకటి అడిషనల్ ప్రొవిజన్ యాడ్ చేసిన. ఇది ఒకటి జనరల్గా అరెస్ట్ రిలేటెడ్ ఒక కన్ఫ్యూషన్ ఉంటుంది. మీరు అన్నట్లు मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मौलाना मोहम्मद मुजफ्फर कादरी की निगरानी में निकाला गया। जुलूस मौलाना रज़ की निगरानी में रेसिडेंसी गुलशन मदीना ईदी बाजार से शुरू हुआ और महफिले तो लाख सजते हैं, आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। इस मौके पर प्रमोद कुमार ने अपना बयान भी दिया है, देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्नास को दिल की अमीर गहराइयों से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कबूल फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह हस्ब साबिक़ की तरह कई बरस से मरकज़ी मिलाद जुलूस जो है शहर हैदराबाद में निकलता है, जो अपनी बेमिसाली में बेमिसाल शान रखता है, क्योंकि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था दुनिया में मबूस होने का कि सारी कायनात को अमन और आमान का पैगाम दें। तो उसी सिलसिले में हम लोगों ने भी बरस पहले एक अमन रैली की बुनियाद डाली आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद पाक के जश्न के मौके पे। तो उसी की कड़ी आज भी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जुलूस इंतहाई शान और शौकत के साथ, डिसिप्लिन के साथ, पुरविखार तरीक़े से लोगों में मोहब्बत की खुशबू बांटते हुए जो है निकलेगा। और हमारे जुलूस की ख़ास बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ रहमतुल मुस्लिमीन बनाकर नहीं भेजा, रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा है। तो इसलिए हमारे जुलूस में दूसरे बरादरान वतन की भी कसीर तादाद शिरकत करती है, ताकि हम लोग हैदराबाद की जो गंगा जमनी तहज़ीब है और इस्लाम का जो पैगाम है उसको आम करने के लिए और गंगा जमनी तहज़ीब की जो बेमिसाली में बेमिसाल शहर हैदराबाद शनाख्त रखता है उसको बरकरार रखा जाए। सारे हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में इसकी मिसाल पेश की जाए। దేవల్ల ప్రిడిక్ట్ చేయలేము, దేవుని దేవల్ల దేవుడు ఎవరినైనా పంపుతారు ఈ మిలాద్ జులూస్లో, వాళ్ళందరూ వచ్చేస్తారండి. చాలా హ్యూజ్ గ్యాదరింగ్ ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరు వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఒక జులూస్ లాగానే వెళ్తారు. అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా మన ఇంట్లోకి వెళ్ళి కూడా ఎప్పటికీ వెనకట్లాగా అదే జులూస్ లాగా వెళ్తున్నాము. और देविंद देवला ने इंगोटी एम చేస్తానంటే हमारे पूरे नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि वो जुलूस की शान को बरकरार रखते हुए इंतहाई डिसिप्लिन का मुजाहरा करते हुए किसी किस्म के कोई नाज़ेबा नारे ना मारें,
ना गाड़ियों की स्टनिंग करें, ना स्केटिंग करें, सुकून के साथ पुरविखार तरीके से दुरूद पढ़ते हुए, सलातो सलाम भेजते हुए और इंतहा से ज़्यादा मोहब्बत खुलूस के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत को बुलंद करते हुए जो है अपने जुलूस का रास्ता तय करें। जुलूस तो जो है हर एरिया से निकल के मक्का मस्जिद पे आएगा और वैसे ही ईदी बाज़ार से भी निकल के मक्का मस्जिद के दामन में जुलूस पहुँचेगा दोपहर से पहले, दोपहर के वक्त तक। उसके बाद वहाँ से निकल के चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, नया पुल, दारुशफा से होता हुआ पुरानी हवेली के रास्ते तय करते हुए जो है मिराला मंडी से जो है वाल्टा होटल मुगलपुरी के पास इख्तिताम को पहुँचेगा। बेहतरीन ताउन है, इसलिए कि गुज़िश्ता की तरह हमने जो गणेश जुलूस को पेश नज़र रखते हुए हमारी तारीख को पोस्टपोन की थी जुलूस की, तो उस सिलसिले में उनका मुकम्मल ताउन है। वो इंतहा से ज़्यादा फ्रीडम जो है जुलूस को जो है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ताउन का भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो बेहतरीन हुकूमत और जो है पुलिस ने बेहतरीन ताउन कर रहा है कि जुलूस के सारे इंतजाम को आसानी के साथ अंजाम दे रहे हैं। दो ही अल्फाज बोलूँगा आपके। महफिलें लाख सस्ती हैं, महफिलें तो लाख सस्ती हैं, आते वही हैं जिन्हें मेरे सरकार बुलाते। क्या बात है साहब, ये बात है। और ये बोल रहे हैं कौन? थैंक यू। मैं आप इजाज़त तो आप समझदारी में रेडी हो जाए। हाफिज़ साहब का नाम माशाल्लाह, हाफिज़ साहब की बहुत लोग चाहते, बहुत बेहतरीन है आदमी, मार्केट में नाम है, अच्छे बुरे में हर चीज़ में रहते। और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो मीडिया वाले आए और हैदराबाद की नंबर 1 पुलिस है। आप लोगों से अदबन गुजारिश करता हूँ भाई, जुलूस को आप लोग एक दायरे में निकालिए। जैसा ये पुंगियाँ, गाने बजाना वैसा नहीं है मेरे भाई। और किसी को तकलीफ मत दीजिए, जैसा हार्ट पेशेंट, किडनी पेशेंट, कोई ज़ईफ़ रहते घर में, कोई प्रेगनेंसी से रहते, तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ भाई ऐसा काम मत करिए। जितना हो सके पुलिस को कोऑपरेट करिए। पुलिस ऐसी चीज़ है, चाहे हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, कोई भी मज़हब को रहने दो, एनी टाइम अपने साथ रहती। और मैं हैदराबाद के कमिश्नर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं, और हमारी MIM जमात का असद साहब का, अकबर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो लोग जो हर जगह यहाँ पर डाले हैं जलसे के जो टैंक्स, तो मैं उन लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अमन शांति से करिए। और हैदराबाद की मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे भाई भी ज़बरदस्त शेर बोले, हमारे भाई हिंदू मुसलमान सब एकता हाथ बरकरार रखना है हमारी। सुने भाई, ऐसा नहीं चाहे लोग मजहब को कुछ भी बोलने दो, मगर हम करेंगे, हर हिंदू मुसलमान हम साथ रहेंगे। सुने भाई, इंशाल्लाह। सुने भाई, साथ थे, साथ है, साथ रहेंगे इंशाल्लाह। आदिलाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर सोलमन ने ड्राइवरों और कंडक्टर्स को मुसाफिरों के साथ शाइस्तगी का मुजाहरा करने और उन्हें बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुंचाने का मशवरा दिया। शहर मुस्तकिल के आरटीसी बस स्टैंड के अहाते में मुनक़दा यौम शुक्रिया प्रोग्राम में रीजनल मैनेजर सोलमन में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर आरटीसी बसों में बाकायदगी से सफर करने वाले 3 मुसाफिरों को शॉल पोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और मुसाफिरों को तहाइफ भी पेश किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए रीजनल मैनेजर सोलमन ने कहा है कि आरटीसी मुसाफिरों की सहूलत के लिए मियारी खिदमात फराहम कर रही है। उन्होंने ड्राइवरों और कंडक्टर्स को मुसाफिरों के साथ शाइस्तगी का मुजाहरा करने और उन्हें बाहिफाजत उनकी मंजिल तक पहुंचाने का मशवरा दिया। उन्होंने आरटीसी के जरिए फराहम करदा खिदमात से अवाम को फायदा उठाने की अपील की। इस मौके पर डिप्टी रीजनल मैनेजर प्रवीण, डिपो मैनेजर के कल्पना, रिजर्वेशन इंचार्ज सैयद अहमद हुसैन के अलावा दीगर अमला मौजूद था। MLC बोमा महेश कुमार गौड़, जिन्हें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया सदर मुकर्रर किया गया है, गांधी भवन में कांग्रेस पार्टी स्टेट मीडिया एंड कम्युनिकेशन के चेयरमैन ने उनका खैर मकदम किया। रियासती ओहदेदार सुमाराम मोहन रेड्डी के साथ वेदेरे योगेश्वर रेड्डी, आचार्य भवानी रेड्डी, लिंगम यादव, ओमेश राव ने इकट्ठे होकर उन्हें मुबारकबाद दी। भैंसा तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेज में एक तहनीती प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें वो स्टाफ जो तबादले, तरक्की और हाल ही में तकर्रुर हुए उनको मुबारकबाद दी और तहाइफ व गुलपोशी, शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई, जिनमें काबिल जिक्र प्रकाश इलियास अहमद, साबिका प्रिंसिपल मोहम्मद इलियास, साइनाथ, पद्मा और अब्दुल अहमद महेश के अलावा नए तकर्रात हासिल करने वाले असातिज़ा, जिनमें सैयद मिनहाज रवि, सानिया, शहनाज वसीम और रवि शामिल हैं। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS, डॉक्टर सुरेश चिल्ड्रन MBBS अस्पताल और फैजुल्ला खान टाउन सदर मजलिस व फ्लो लीडर बल्दिया मौजूद रहे। इस मौके पर
فیض اللہ خان نے اعلیٰ نشانات سے کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کو نقد رقم سے نوازا، جبکہ پرنسپل عبدالجبار نے طلباء کو انعامات سے نوازا اور تعلیم کے فوائد بیان کیے۔ اس پروگرام کی نظامت لیکچرر انگلش راجش اور شیخ علی عرفانی نے انجام دی۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔